हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने 11th क्लास के कुछ सिलेबस आपको दे भी चुकी हूँ मैं, पर 12th का नहीं अभी दिया है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश यही है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल वीडियो ऑल फ्रेंड्स, एंड वीडियोस आप शेयर कीजिए एंड लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, राइट। एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस, 9 to 12th इकोनॉमिक्स, 9 to 12th होम साइंस, राइट। एंड आपके CTET एग्जामिनेशन की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन एनी क्लास, kindly let me know, kindly comment in comment box, I'll add you in my paid batch. First of all, it was all about information and फैमिली को आप थोड़ा बढ़ाइए। माई सिस्टम, माई टेक्निकल टीम इज़ रेडी टू टेक द लाइव क्लासेज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, बट थोड़ा फैमिली बढ़ाइए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, राइट डियर ऑल। चलिए, हमारा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना, जिसमें नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो 15 मार्क्स का आता ही आता है। नेशनल इनकम सम टोटल ऑफ मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अ कंट्री। जीडीपी क्या है? जीडीपी प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी यानी मार्केट प्राइस। GDP MP is gross market value of final goods and services produced within domestic territory of a country during a year. NDP क्या है? Net domestic product at market price. NDP MP is the net market value of all final goods and services produced in domestic territory of a country during a year. NDP MP equal to NDP MP minus depreciation, net domestic product at factor cost, NDP FC. NDP FC is the net value at factor cost of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during a year. NDP FC equal to GDP MP minus depreciation minus NIT, gross national product. National product is gross production of final goods and services produced by normal residents of a country within and outside of domestic territory of the country, correct. Gross national product at market price is the total money value of final goods and services produced in domestic territory of a country including depreciation during a year plus net factor income from abroad. So GNP MP equal to GDP MP plus NFIA, correct. Net national product at market prices, NNP MP, ठीक है। NNP net national product at market price. MP is the net value of final goods and services produced by normal residents of a country during a year. NNP MP equal to GNP MP minus depreciation. Net national product at factor cost, NNP FC. Net national product at factor cost is sum total of net value added at factor cost by all the normal residents of a country during a year. NNP FC equal to NNP MP minus NIT. Private income, income from net domestic product, NDP FC accruing to private sector, accruing to private sector plus net factor
net factor income from abroad NFIA plus current transfer for government plus net current transfer from rest of the world plus interest on national debt. Personal income is the sum of all kinds of income received by the individual from all resources. Personal income equal to private income minus अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. रट डालना. पर्सनल इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अवितरित लाभ, राइट, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स. ठीक, फॉर्मूले रट लेना, एकदम रट्टा मार लेना, घोट के पी जाना. ठीक है. पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम PDI, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स माइनस फीस एंड फाइन्स. National disposable income NDI is the income from all resources available to the residents of a country for spending on consuming and saving. GNP MP plus NCT यानी net current transfer from the rest of the world. नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रट डाल बेटा, फॉर्मूले रट लेना, कई बार रट लेना. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. विच ऑफ अच्छा ये MCQ आ गए आपके. ठीक है ना. विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड नेट आउटपुट मेथड मेजरिंग नेशनल इनकम. बताइए. ठीक है ना. 4 ऑप्शन है इसमें से बताइए. इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब होता है? देखो. एज पर वैल्यू एडेड मेथड विच इज़ नॉट एडेड. ये बताइए. 4 ऑप्शन है इनमें से एक. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू. बताइए किसके इक्वल होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम इज कौन सी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स इज इक्वल टू. फिर मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड. बताइए. नेशनल इनकम इज ऑफ एन एस्टिमेट किसको कहा जाता है? सबको मालूम है, NPFC होता है ना. ये सब चीज़ें रट लो. आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड. बताइए. फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम इज कौन सा है? विच ऑफ लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट कौन सा है? हाउस होल्ड इन्वेंट्री इज. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ. Which of following is not element of financial consumption expenditure? बताइए कौन सा है? Differences between closing stock and opening stock during an accounting year is known as. Which of following is not included in inventory statement? Which of following is not a part of final expenditure? 4 ऑप्शंस में से एक आपको चॉइस करना है. आंसर देख लो. ठीक, आपके ये आंसर की है आपके. आप इसको स्क्रॉल करके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं. जितने क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर कौन से हैं. चाहे आप पिक्चर क्लिक कर लो, आंसर क्लिक कर लो, तब आप पढ़ लो, चाहे आप एक ही साथ पढ़ लो. ठीक, 1-2 बार देख लोगे या मैं दिखा दूँ तो बता ही दूँ. फर्स्ट का देखो. ABDAA 5 तक चलते हैं लगातार. A वैल्यू एडेड मेथड, A फिर B
फिर डी, राइट, फिर उसके बाद ए और ए, समझ लो। फॉलोइंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड नेट आउटपुट मेथड। तो ये आपका जो है क्या हो गया, वैल्यूएटेड मेथड, करेक्ट। Which of following method is also called net output method of measuring national income, valuated method, ठीक। इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, तो आपका होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, क्लियर। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, क्लियर। मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसके बाद as per value added method which is not added, अभी मैंने आपको बताया, बताइए कौन सा है। फिर सेल चेंज इन स्टॉक इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर एज अ रिजल्ट डबल काउंटिंग ओवर एस्टिमेटेड, काउंटिंग नेशनल इनकम इज ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है। सिक्स से देखो, ये क्लियर हो गया। अब आपका आ गया 6 पे, BADC, BADCAB, चलते हैं, BADCAB 11 तक, ठीक है। थर्ड का जो मैंने थर्ड क्वेश्चन का पूछा था मैंने, एज पर वैल्यू एडेड मेथड विच इज़ नॉट एडेड, तो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, ठीक। अच्छा इसमें देख लो BC, भूल गई मैं खुद, फिर से देख के आते, DA शायद, BAD, याद रखना, BADCAB, ठीक है, BADCAB आ जाओ 6 से, यहाँ आ जाओ। BAD यानी 6 का चेंज इन स्टॉक B, 7th का GDP एट मार्केट प्राइस A, D नेशनल इनकम ऑफ एन NPFC मैंने बता ही दिया था, BADC इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, A फाइनेंशियल हेयर विक्टिम इज ट्रांसफर पेमेंट, फिर आपका B 11th का मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्विक रिवीजन करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल इज इक्वल टू, तो आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक, ठीक। मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग
depreciation produced within a domestic territory of a country during an accounting year is called. आपका क्या हो गया? अभी मैंने बताया। सेवेंथ का ए, ठीक है। BAD CAD फिर से आ रहा है। बी चेंजिंग स्टॉक हो गया। ए GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक। D NNPFC। C indirect tax and subsidy. Net indirect tax are estimated. Indirect tax subsidies. 10 ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ गया? 11th यानी बी मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट, नीट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक। अब 12th का आ जाते हैं हम। CDD BDC आ जाओ। CDD BDC C both DD D both D raw material expenditure on CDD B decrease in stock (16) change in sale during a year। फिर आपका विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट, आपका 6 BC DD नहीं CDD BDC, ठीक। चलो हाउस होल्ड इन्वेंट्री, तो आपका क्या होगा? बताओ सरकार। अभी मैंने बताया 2 सेकंड पहले। क्या होगा? सी यानी बोथ, ठीक है ना। A and B आर करेक्ट, यानी नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। हाउस होल्ड इन्वेंट्री कौन सा है? नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक। अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्लियर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज द सम टोटल ऑफ, किसका सम टोटल होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये आपका डी यानी 13D, 13 आपका डी यानी बोथ बी एंड सी, यानी एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंजिंग स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट स्टॉक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंजिंग स्टॉक, राइट। फिर आपका आ गया, मतलब दोनों होता है कहने मतलब, तो ये आपका डी सही होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आपका कौन सा हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। बोल क्या रहा है समझो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा।
विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एलिमेंट नहीं है। फाइनल कंजम्पशन अंतिम उपभोग व्यय जो होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एलिमेंट नहीं है। तो कौन सा नहीं है? एक्सपेंडिचर ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का एलिमेंट नहीं है, राइट। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज, अभी मैंने आपको बताया क्या है, बोलिए। आपका डिक्रीज इन स्टॉक बोल क्या रहा है? डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस जो होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये क्या बोलते हैं इसको? डिक्रीज इन स्टॉक। ईच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन्वेंट्री स्टेटमेंट। इन्वेंट्री स्टेटमेंट में किसको शामिल नहीं किया जाता? किसे शामिल नहीं किया जाता? आपका चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग अ ईयर। चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग अ ईयर को इन्वेंट्री स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया जाता। चेंज रट डालो, चेंज इन सेल्स ड्यूरिंग अ ईयर को इन्वेंट्री स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया जाता, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, बताइए। ये हो गया आपका शीट्स परचेज बाय फार्मर एक्सपेंडिचर। शीट्स परचेज बाय फार्मर एक्सपेंडिचर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। शीट परचेज बाय फार्मर एक्सपेंडिचर। तो फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट कौन सा नहीं है? शीट्स परचेज यानी बीज खरीदना बाय फार्मर्स एक्सपेंडिचर, ठीक। ये फाइनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, क्लियर। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लो। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट इनकम। डिफाइन नेट national disposable income, define personal income, what is personal disposable income, what is national debt interest, define factor income, what is meant by transfer payment, what is meant by nominal GDP, what is meant by real GDP, and what is gross national disposable income. high order thinking question, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर ये वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से चलेंगे। ये क्वेश्चंस आप देख लो, क्लिक कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब हम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कल पढ़ेंगे। कल मतलब अभी भी नेक्स्ट वीडियो पे, राइट डियर। इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।